Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. My little friends, I noticed and I observed that since your grammar classes have been going on for a long time, through your comment sections, through your observations, I personally observed that all these lectures are becoming a little bit boring, tedious, monotonous for you. Therefore, from today onward, I have decided to stop the grammar class for some time. And my little friends, from today onward, there will be some lectures on different chapters of your book Rainbow. It will refresh your mind. It will make you happy. As I told you, that your comments reflect that you are not as comfortable as you should have been. Therefore, I have decided to start one of the most important poems of your book, The Soldier. My dear friends, what I am going to tell you, you have to listen to this very carefully. When I teach you about the poet, you have to be very attentive. Because some objective questions are asked in examination from this section about the poet. Means some questions will be based on the life of a particular poet. So you have to be very careful. You have to note these points which have been written on the board and read it sincerely. And if you are watching the video, you have to listen to my observation carefully. So, before I start teaching you the poem, I would like to tell you something about the poet. I have written something on the board. You see, the poem The Soldier has been written by Rupert Brooke. About the poet, the first point is he was born in 1887 and died in 1950. If you calculate, you find that the poet got a very short span of time to live on this earth. His lifetime was very small, 1887 to 1915, almost 27-28 years. In that short span of time he died. Second, W.B. Yeats described him as the handsomest man in England. You see here a word, handsomest. Many of you will raise a question, sir, we hear handsome, more handsome and the most handsome. Beautiful, more beautiful and the most beautiful. But here the word handsomest has been used. Why? My dear students, with the passing time, with the changing time, the language also changes its forms. The language also changes its design, shape and variety. As it happens in the case of our own language Hindi, you would have observed that the language which was used by Rahim, Tulsidas, Surdas
was completely different to that of the language which was used by Ramdhari Singh Dinkar, Sumitra Nandan Pant, Surikant Tripathi Nirala, etc. etc. आपने अगर हिंदी को गहन ढंग से देखा है तो आप देखोगे कि तुलसीदास, सूरदास और रहीम जी जैसे महान रचनाकारों के भाषा में जो शब्द यूज किए गए हैं या उनकी जो भाषा थी वो, और वर्तमान काल के, आधुनिक काल के रामधारी सिंह दिनकर हों, हरिवंश राय बच्चन हों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हों, इन सब की हिंदी में एक बहुत जबरदस्त अंतर दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों, कोई उर्दू के कवि हैं और कोई हिंदी, दोनों ही हिंदी के ही कवि हैं, चाहे वो रहीम जी हों या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो। तो मेरे कहने का मतलब भाषा समय के साथ बदलती रहती है। हैंडसमेस्ट का यूज किया W.B. येट्स ने, उस समय लोग करते होंगे। तो W.B. येट्स कहते हैं, W.B. येट्स डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट मैन इन इंग्लैंड। W.B. येट्स ने कहा कि वो इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत लोगों में से एक थे या सबसे खूबसूरत व्यक्ति थे। He died of septicemia on April 23, 1915. Let me tell you, my friends, he was a soldier in the British Army. He fought during the First World War, as you see, 1915. And all of you know that the First World War began in 1914. 14 में शुरू हुआ, 15 में ये मर गए दुनिया से। तो इनकी जो मौत हुई सेप्टिकेमिया से हुई। सेप्टिक से बना है, जहर फैला पूरे बॉडी में। जब वो युद्ध के क्षेत्र में जा रहे थे, उसी क्रम में किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काटा। कुछ दिनों तक उनकी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन उसके जहर से ये उबर नहीं पाए और इस तरह से उनकी मौत हो गई। बड़ी दुखद और बड़ी ही क्या कहते हैं, ट्रेजिक मौत उसको कहा जा सकता है। 1915 में वो चले गए। लास्ट में लिखा हो, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज वॉर पोएट। उनको युद्ध कवि कहा जाता है। उन्होंने प्रेम पर आधारित कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने प्रकृति पर आधारित कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने युद्ध पर आधारित, क्योंकि वो खुद एक सैनिक थे, उन्होंने युद्ध पर आधारित कविताएं लिखी। मेनी ऑफ हिज पोएम्स विल रेज योर गूज़बम्प्स। आपके रोमांच को, आपको रोए को खड़ा कर देने के लिए उनकी सारी कविताएं काफी हैं। जैसे अपने यहाँ रामधारी सिंह दिनकर को आप पढ़ते हो तो आपके अंदर का इट सेक्स यू फ्रॉम विद इन, यह आपको अंदर से हिला देता है। ये कविताएं काफी है, आपके अंदर जो ठंडा पड़ा हुआ रक्त है उसको खौला देने के लिए। यही वाली बात रूपर्ट ब्रूक में भी थी। रूपर्ट ब्रूक ने भी ऐसी कविताएं युद्ध पर आधारित, वीरता पर आधारित लिखी है कि यंग लोगों के अंदर की जो नस में, धमनियों में बहने वाला जो रक्त है, जो ठंडा पड़ चुका है, उसको गर्म कर देने के लिए काफी होता है, वो खौलने लगता है। तो आज उसी महान कवि की महान कविताओं की श्रृंखलाओं में से एक कविता को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, द सोल्जर। आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस एक्सपीरियंस। तो देखते हैं क्या है, क्या कवि कहते हैं, लाइन बाय लाइन उसको स्टडी करेंगे, समझेंगे। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, ये कविता, ये बात कहते कहते लगभग एक जैसी लगेगी आपको, और मैं हमेशा कहता ही रहता हूं, लेकिन चूंकि YouTube है तो इसमें कई लोग बाद में जुड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए जो मैंने कई बार कहा कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यानी जहां तक रवि मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, वहां तक कवि की कल्पना चली जाती है। इसलिए कवि के द्वारा कही गई बातों को हमें बड़ी गूढ़ता से, कहानी में सीधी चीजें लिखी रहती हैं, पढ़ते जाते हैं, समझते हैं। कविता में जो दिखता है उसके पीछे के भाव को, मीन्स what I have told you many more times, my friends, is that you cannot understand a poem by reading its line by line, by finding out the meaning of the poem. You have to understand the poem by understanding its sense. आप किसी कविता को उसके शब्दार्थ से नहीं समझ सकते, आप कविता को भावार्थ से समझते हो, यानी उस कविता में छुपे हुए भाव को पढ़ करके, देख करके, सुन करके आप समझते हो। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस कविता को, मजा लेते हैं। आई होप दैट यू विल एंजॉय द पोएम द सोल्जर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस पोएम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स फॉर दिस एग्जाम, अपकमिंग एग्जामिनेशन, फॉर योर एग्जामिनेशन। So I hope that you will enjoy it, you will listen to my lecture properly, and
after completion of the lecture, I will say you something which you have to understand as well. The poet says, if I should die, think only this of me, and there is some corner of a foreign field. आप जानते हो, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, कविता एक सैनिक के द्वारा लिखी गई है, जो सैनिक भी थे, कवि भी थे, और वो सैनिक किस दौर के थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय के। तो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों विश्व युद्धों में एक प्रमुख देश जो था, जिसने बड़ी एक्टिवली भाग लिया, उसमें इंग्लैंड भी था। इंग्लैंड की जो सेनाएं थी, अलग अलग देशों में पहुंचती थी, वहां युद्ध करती थी, चूंकि ये विश्व युद्ध की बात थी। तो कवि कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सोचो, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड। ये संभव है, चूंकि मैं विश्व युद्ध में शामिल हो रहा हूं, तो ये भी संभव है कि मैं किसी विदेशी धरती पर मरूं। दैट्स फॉर अवर इंग्लैंड, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड। Here, the poet has expressed something, and his expression reflects, echoes his superiority complex. As you know that the British, the English considered themselves the supermost human beings on the earth. यहां पर कवि ने जो लिखा है वह उनके अंदर का, जो अंग्रेजों के अंदर एक भावना थी कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों में से हैं, बल्कि मनुष्यों में से नहीं है, बल्कि मनुष्य हैं हम ही। अंग्रेजों ने ही दुनिया को शिक्षा दिया, संस्कार दिए, विज्ञान दिया, ज्ञान दिया। तो ये बात यहां पर कवि की लेखनी से भी झलकती है। वो कहते हैं कि इतना मैं वादा करता हूं कि जहां मुझे दफनाया जाएगा, हो सकता है इंडिया में ही मेरी मौत हो जाए, हो सकता है म्यांमार में मौत हो जाए, उसमें बर्मा के नाम से, हो सकता है चाइना में मौत हो जाए, क्योंकि विश्व युद्ध का मैं हिस्सा हूं। दुनिया के हर देशों में जाकर के हम लोग मोर्चे पर भिड़ेंगे, लेकिन जहां मुझे दफन किया जाएगा वह धरती तो सुंदर होगी ही, लेकिन वह धरती मेरे दफन हो जाने से और ज्यादा सुंदर हो जाएगी, क्योंकि मैं कभी यहां पर अपने महानता को नहीं दे। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है ना, जैसे आप कहते हो मैं महान नहीं, मेरा देश महान, और मेरे देश की महानता की वजह से मैं महान हो जाता हूं। तो ठीक वही बात यहां पर कवि कह रहे हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड। रिच एंड रिचर, देखिए कवि कहते हैं कि जहां मैं मरूंगा वो तो पहले से ही धनी महान होगा, लेकिन जब मेरी बॉडी वहां समाहित हो जाएगी, उस मिट्टी में मिल जाएगी, तो वो रिचर हो जाएगी, यानी और ज्यादा संपन्न समृद्ध हो जाएगी। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flaws to love, her ways to roam, a body of England's breathing English air. कहते हैं डस्ट, धूल, धूल यानी क्या? अपने खत्म हो जाने हैं, डिकेइंग बॉडी, उनका जब शरीर खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, वो कहते हैं इस मिट्टी को, आपने सुना होगा, पंच तत्व मिल बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीर, कि जिसमें कि क्षितिज है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सारी चीजों को, 4-5 भूमि है, तो इन सब चीजों को मिला करके हमारे बॉडी का निर्माण होता है, तो उसमें मिट्टी भी है। तो वो कवि कहते हैं कि ये मिट्टी, यानी ये शरीर को उन्होंने मिट्टी का जहां मिलेगी, वो मिट्टी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। इंग्लैंड ने इसे संस्कार दिया, इसे पाला पोसा, इसको खुशियां दी, इसके गम को पोंछा, तो यानी ये पूरी तरह से ये मिट्टी, ये शरीर इंग्लैंड का है। आई एम ऑफ इंग्लैंड, फॉर इंग्लैंड, एवरी टाइम, एवरीवेयर।
कवि के कहने का मतलब है मैं इंग्लैंड का हूं और हमेशा कहां के लिए मरूंगा, इंग्लैंड के लिए मरूंगा। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम्स। ये इंग्लैंड की बॉडी है, इंग्लैंड के हवाओं में, इंग्लैंड के सूरज के ने इसे पुष्पित और पल्लवित किया है, बड़ा किया है। मैं कर्जदार हूं अपने देश का, मैं मौत के बाद भी शायद उस कर्ज को लौटा नहीं पाऊंगा। कवि के कहने का मतलब मेरी मौत भी मेरी मातृभूमि के कर्ज को कम नहीं कर सकती। मैं हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगा, क्योंकि यह शरीर उसी का देन है। देखिए, यह सोनेट है, ये पोएम, और 1 मिनट टाइम आपका चाहूंगा सोनेट को समझाने के लिए। सोनेट 14 पंक्तियों की कविताएं होती हैं, 2 भागों में बांटा रहता है, 8 और 6। यानी आप पढ़ोगे, अपनी बुक को खोल करके देखिएगा, शुरुआत के 8 पंक्ति होंगे, बाद की 6 पंक्तियां होंगी। 8 पंक्ति में एक तरह से डिस्क्राइब करते हैं कवि, चीजों का विश्लेषण करते हैं, जिन चीजों को उनको बोलना है उसका विश्लेषण, और आखिर की जो 6 पंक्तियां होती हैं उसमें उसका निष्कर्ष, कंक्लूजन किया जाता है, रैपअप किया जाता है, समेट दिया जाता है कविता को। तो अभी तक हम लोगों ने 8 पंक्तियों में पढ़ा, शुरुआती 8 पंक्तियों में, कि कवि कहते हैं कि अगर मैं मरूं, संभव है कि मैं किसी विदेशी धरती पर ही मरूंगा, लेकिन हे मां, अपनी मातृभूमि को कहते हैं, हे मां मैं वादा करता हूं वह मिट्टी भी आपका हो जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जो दफन बॉडी होगी वो कहां की होगी, इंग्लैंड। यानी अपने बारे में वो कह रहे हैं। और वह धरती भी धन्य हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके नीचे दफन होऊंगा। एक तो वो धरती पहले से धन्य होगी, वो और धन्य हो जाएगी मेरे दफन होने से, क्योंकि मेरी बॉडी कहाँ की बनी हुई है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड की हवाओं ने, पानी ने, सूरज ने इसे पल्लवित, पुष्पित, सींचा, बड़ा किया, और यह महान बॉडी जो कहाँ की है, इंग्लैंड की है, उस धरती को और महान बना देगी। ये थी अभी के शुरुआती पंक्तियां। अब आगे देखते हैं। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल सेट अवे, अ पल्स इन द एटर्नल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। जब आप कट्टर राष्ट्रवादी होते हो ना, तो आप कुछ नहीं होते हो, यू लूज योर ईच एंड एवरी आइडेंटिटी। द casteism, any particular religious belief in your mind, each and everything vanishes when you start thinking about your nation, when you start thinking about your country. जब आप अपने देश के बारे में यानी सच्चे देशभक्त हो जाते हो, तो आप ना तो ब्राह्मण होते हो, ना राजपूत होते हो, ना कोई चमार होते हो, ना डोम होते हो, ना आपकी कोई जात होती है, ना हिंदू होते हो, ना मुसलमान होते हो। यू आर मेरली एन इंडियन। तब आपके दिमाग से ये सारे फितूर, मैं इस जात का हूं, मेरा ये धर्म है, मेरा ये प्रांत है, मैं इस राज्य से आता हूं, सारे वाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, सब आपके दिमाग से निकल जाता है। एक ही शब्द आपके दिमाग पर हावी होता है, राष्ट्रवाद। आपकी एक ही पहचान होती है, आई एम एन इंडियन, आई हैव नो अदर आइडेंटिटी। कभी यहां वही कह रहे हैं कि जब मैं आपके बारे में, आपका मतलब अपनी मातृभूमि के बारे में कहते हैं, जब मैं आपके बारे में सोचता हूं, ऑल एविल सेड अवे। एविल मतलब क्या होता है, बुराई। मेरे अंदर की सारी बुराई खत्म हो जाती है। मेरे अंदर जो धड़कन है, जो एटर्नल है, पल्स मतलब धड़कन, मैंने यहाँ के कीवर्ड्स लिखा है, और एटर्नल मतलब शाश्वत, अमर, जो कभी खत्म। ये जो धड़कन आपके लिए धड़कती है वो हमेशा मरेगी। मेरी आत्मा भी अपनी मातृभूमि को चूमती रहेगी, प्रणाम करती रहेगी। मैं जो मुझे इंग्लैंड से मिला है उसे मैं वापस करना चाहता हूं अपने मृत शरीर के रूप में। Her sights and sounds, dreams happy as her day, and laughter learnt of friends and gentleness. अपने मातृभूमि की बड़ाई कर रहे, प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसके दृश्य, उसकी ध्वनियां ऐसा लगता है जैसे दिन के सपने के तरह सुहाने हों। रात में तो सडनली कई दफा नाइटमेयर्स भी आते हैं। नाइटमेयर्स मतलब दुष्स्वप्न यानी बुरे सपने,
लेकिन दिन में आप सोच करके, आप ऐसे नहीं बैठते पालथी मार करके कुर्सी पर, ओह काश आज मेरा एक्सीडेंट हो जाए, काश कोई सांड आकर के आज मुझे उठा के फेंक दे। खुली आंख से ऐसे ऐसे सपने नहीं देखते लोग। खुली आंख से, ओह काश मैं विराट कोहली जैसा क्रिकेटर हो जाता, काश मैं इतना खूबसूरत हो जाता लोग मुझे घूम घूम करके देखते, काश मैं आईएएस अधिकारी बन जाता, फला फला फला, ये वो इमाना ढिमाना सब कुछ। तो दिन में आप ऐसे सपने देखते हो। कभी कहते हैं कि दिन के सपने की तरह खूबसूरत है मेरा देश, उसका दृश्य, उसकी ध्वनियां। एंड लास्ट लॉन्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, इस देश ने मुझे खुशियां दी, मित्र दिए, विनम्रता दी, यानी संस्कार दिए, सिविलाइजेशन दिए। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। कभी कहते हैं कि अंग्रेजी स्वर्ग, यानी मैं जहां रहूंगा उसके ऊपर की धरती अंग्रेजों की हो जाएगी, इंग्लैंड की होगी, और उसी स्वर्ग के नीचे शांति और सुकून से मैं दुनिया से जाना चाहता हूं। ऐसा लगता है, क्योंकि कवि ने ये कविता अपने मरने के कुछ समय पहले ही लिखी, तो कवि को अपने मौत का पूर्वाभास था। इसलिए मौत के पहले, मौत के बाद वो क्या चाहते हैं, किस रूप में याद किया जाना चाहते हैं, इन सारी चीजों को इस कविता में कवि ने लिख दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माय लिटिल फ्रेंड्स, यू हैव अंडरस्टूड द पोएम and express your feelings, express your experience, express your observation through your comments. And what more I would like to tell you that in upcoming classes there will be a notice about the distribution of notes. How will you get your notes? When will you get your notes? What will be the timing for having your notes? And all these things will be cleared in the next lecture. So thanks all of you for watching my video.